Hello viewer, it's me Manu Issue and welcome to my channel Manu Issue ACC classes. So in today's video we will be continuing the rest of the question from the consolidated financial statement of F3. And if you are watching my video for the first time, please like and subscribe to my channel and hit the bell button so that you will get notified when I will upload a video. So without wasting our time, let's move to the question. In the previous video, we have done till question number 26.17. From here, we will continue from 26.18. Okay. What the question is asking, what amount should be included in the consolidated financial statement of date group at 31st December 20x84 for tangible non-current asset? Okay, so question is just asking what amount should be included in the consolidated financial statement of date group at 31st December 20x for tangible non-current asset. Non-current assets का जो tangible है उसका वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे जब consolidated प्रिपेयर करेंगे. So first we need before preparing the consolidated financial statement, we need to do a 5 working. The working one, which is for the group structure, in which we determine who is the parent company and who is this subsidiary, and how much share is owned by parent, and date of acquisition, time of acquisition, and year in. These things we need to record in the work. We need to mention in the working one. And in working two is of the net asset of subsidiary at the acquisition and at reporting date. And the total of the both, the difference between the total of the both is the post acquisition reserve, which is distributed according to the percentage owned by the NCI and the parent. Then third working is for the goodwill, where we what we do first, we find out the what is the amount paid by the parent to acquire the subsidiary. Okay, then the amount fair value of NCI non-controlling interest, then we will deduct the net asset at acquisition, then we will get the goodwill. Then fourth working is for the NCI and fifth one is for the group return earning. Okay, so here according to the first working, date company owns 100% ordinary shares of capital of prune company. Okay, so it means date company is parent and prune company is a subsidiary. And as the date company own 100% share means all the shares of prune company, so there is no NCI, so we don't have to calculate the amount of NCI, that is the working for, we don't have to do calculate, sorry. Then the following balance relate to the prune company. ओके यहाँ पे कट गया हुआ है, लेट इट। सो टेंजिबल नॉन करेंट एसेट दोनों का दिया हुआ है, दैट इज द 500 फॉर द फ्री होल्ड लैंड, ठीक है। एंड आपका प्लांट एंड इक्विपमेंट, ओ आपका डेट ऑफ एक्विजिशन का ही दिया हुआ है एंड एक आपका रिपोर्टिंग डेट का दिया हुआ है। जस्ट लुक एट इट, लुक एट द डेट। ओके, सो इट मीन्स हमारा नेट एसेट एट एक्विजिशन में जो हम लोग निकालते हैं ना, हमारा टेंजिबल नॉन करंट एसेट का वैल्यू दिया हुआ है एट एक्विजिशन एंड एट द रिपोर्टिंग डेट, दैट इज द ईयर एंड और कह सकते हो। तो एट एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ प्रिंट कंपनी लैंड वाज 50,000 मोर देन द सोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रून कंपनी। मतलब आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ होगा, जिसके कारण आपका लाइक और भी चीजें कर सकते हैं, लाइक प्लांट एंड बिल्डिंग का ही होगा, मशीनरी का होगा, जो भी है उसके थ्रू तक समझो कि आपका लैंड का बोल ही रहा है। फेयर वैल्यू ऑफ प्रिंट कंपनी लैंड का वैल्यू 50,000 मोर देन द शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रिंट कंपनी। जिस रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ है लैंड का 50,000 से। और 31st December 20x8 date company financial statements show a total tangible non-current asset balance of
1250000, मतलब जब एट 31 दिसंबर 20x8 पे डेट कंपनी कौन है आपका, पेरेंट्स है, उसका टोटल टेंजिबल नॉन करंट एसेट कितना है, 1250, ठीक है। और हम लोग को एट द डेट 31 दिसंबर 20x8 ओके, सो हम लोग को पेरेंट्स का दिया हुआ है टोटल टेंजिबल नॉन करंट एसेट, और हम लोग को रिपोर्टिंग डेट का सब्सिडरी का भी नॉन करंट एसेट का लेंगे वैल्यू, तो कितना है 950। बट यहाँ पे एक लाइन बोल रखा है 50,000 से इंक्रीज हो रही है लैंड की वैल्यू, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं किया गया है, तो इसको भी ऐड कर देंगे। तो हम लोग जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल पोजीशन जब बनाते हैं, हम लोग लाइन बाय लाइन ऐड करते हैं, ठीक है, दोनों एसेट्स को। तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे 150, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा है 26.18, ठीक है। तो पेरेंट्स का एनसीए क्या है, नॉन करेंट एसेट्स, क्वेश्चन में दिया है 1250, मैं 30 कॉमन ले रही हूँ, ऊपर भी लिख देती हूँ, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है। और सब्सिडरी का एनसीए क्या है 950 रिपोर्टिंग डेट का लेंगे, एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस जो लैंड का हुआ है सब्सिडरी में, ठीक है, इसको कहा दिखाएंगे +50 कर देंगे। तो टोटल करने के बाद क्या है, ओके 2250 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26.19, what should be amount of trade receivable and trade payables in consolidated statement of financial position as at 31st December 20x4? Okay, six company owns 80% of the equity share capital of Sevenco. It means Seisco is parent company and Sevenco is subsidiary, and percentage कितना own किया है 80%, it means 20% is NCI. Okay, as 31st December 20x4, the trade receivable and trade payable are two company whereas follow. Okay, आपको रिपोर्टिंग डेट का ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल फॉर द बोथ कंपनी इज गिवन, ओके। उसके बाद दिस फिगर इंक्लूड 30,000 दैट इज ओन्ड बाय सेवेनको टू सिक्सको फॉर द परचेज ऑफ द गुड्स फॉर व्हिच सिक्सको हैज नॉट येट पेड। These goods were sold by six company for the profit of 15,000 and 50% of them were still as inventory by Sevenco as at 31st December 20x4। ओके, सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग क्या करना है ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल जब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, वी विल जस्ट ऐड लाइन बाय लाइन ऑफ द बोथ पेरेंट्स एंड सब्सिडरी, ठीक है। बट यहाँ पे केस क्या आया हुआ है, यहाँ पे इंट्रा सेल्स हुआ है, कौन किसको सोल्ड किया है, इज द 30,000 दैट इज ओड बाय सेवन कंपनी को 30,000 पे करना है सिक्स कंपनी को, ठीक है, फॉर द परचेज ऑफ ए गुड्स, मतलब कि सब्सिडरी को पेरेंट को पे करना है जो गुड्स सोल्ड हुई है। तो हम लोग ने पढ़ा था लाइक इफ देयर इज एनी इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन या फिर सेल्स या फिर लोन वगैरह कुछ भी दिया है, दैट शुड बी कैंसल आउट व्हाइल प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, है कि नहीं। सो हियर क्या होगा आपका, ये तो जो 30,000 है वो तो एक के लिए रिसीवेबल है, एक के लिए पेबल लगा, ऑब्वियस है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को लाइन बाय लाइन ऐड कर देंगे, 64,000 39,000 लाइन बाय लाइन ऐड कर देंगे, और नीचे वाले में 37,000 48,000 लाइन बाय लाइन ऐड कर देंगे। बस 30,000 जो है ना, ये आपका ये 30,000 जो आपका एक के लिए रिसीवेबल एक के लिए पेबल माइनस कर देंगे दोनों से, ट्रेड रिसीवेबल से भी माइनस होगा एंड ट्रेड पेबल से भी।
और रहा बात बाकी का जो ये बोला, दिस गुड्स वेर सोल्ड एट प्रॉफिट फॉर 15,000 एंड 50% देम स्टिल इन इन्वेंट्री, ये पर कैलकुलेट करते देन इट रिक्वायर्ड, बट यहाँ पे इन्वेंट्री वगैरह कुछ बात भी नहीं है, सो ये हम लोग को नहीं चाहिए, बस ऐसे ही क्वेश्चन में बोल रखा है। बस हम लोग को ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल एक लाइन बाय लाइन ऐड कर दो और 30,000 दोनों से माइनस कर दो, बिकॉज ये इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन है जो कि कैंसिल आउट होना चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे इसके लिए। ओके, उसके बाद देख लो आपको क्या आंसर आता है। ओके, 26.20 डोनर रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन अ डोनर ग्रुप एज 31 December 2024 फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, तो एनसीआई इट मींस वर्किंग फॉर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए मैंने बोला वर्किंग 5 वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन में लिंक होगा, तो जस्ट आप प्रैक्टिस करते जाओ, आपको इजी हो जाएगा। तो वॉकिंग वन पर लगते हैं, कौन किसको एक्वायर कर रहा है? डोना कंपनी एक्वायर्ड 80% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ब्लिस्टिन कंपनी, इट मींस डोना कंपनी इज पेरेंट, सो आई विल राइट डी इन शॉर्टकट, acquire 80%, then and I will write shortcut in B, means Dona company is parent company and Blitzen company, Bilsen है ना, Blitzen is the subsidiary. Okay, 80% acquire कर रहा है। अब कब? On date भी given है, on January 20x4। ईयर इन हमारा क्या है? 31 December 20x4। ठीक है, इट मीन्स टाइम ऑफ एक्विजिशन, टीओ लिख रही हूँ शॉर्टकट में, टाइम ऑफ एक्विजिशन हमारा 1 ईयर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और टीपीसी, या टीपीसी रिक्वायर्ड, ओके लेट इट बी टीपीसी, अभी देखेंगे। अब इसके बाद वर्किंग टू, वर्किंग टू किसके लिए होता है? नेट एसेट, नेट एसेट ऑफ होम, पेरेंट और सब्सिडरी, सब्सिडरी। ओके, सो नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन एट रिपोर्टिंग डेट, एंड दोनों का डिफरेंस रहेगा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। ठीक है, तो पहले शेयर कैपिटल लेंगे, शेयर कैपिटल आपका 31 December 20x4 डेट इज रिपोर्टिंग डेट, कितना है? 40, 30 कॉमन है। ठीक है, तो इधर ही 40 लिखेंगे, वी विल एज्यूम कि सेम है। वी हैव ए शेयर प्रीमियम, रिपोर्टिंग डेट का कितना? 10, तो इधर भी 10 लिखेंगे। रिटेन अर्निंग आपको रिपोर्टिंग डेट का है 60, बट एक्विजिशन डेट का गिवन द क्वेश्चन दैट इज द 40,000, यहाँ पे दिया है व्हेन रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग आगे हाँ ऑफ ब्लिट्सन कंपनी वेयर 40,000, इट मींस रिटेन अर्निंग आपका 40 है। ठीक है, अब उसके बाद और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या? ड्यूरिंग द ईयर ब्रिट्सन कंपनी सोल्ड गुड्स टू डोना, ब्रिट्सन सोल्ड करी है डोना को, इट मीन सब्सिडरी सोल्ड करी है पेरेंट को। ठीक है, तो यहीं पे पर कैलकुलेट कर लो। अब मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो भी जब देखोगे तो उसमें बोला था, इफ सब्सिडरी पेरेंट को सोल्ड कर रही है देन वी विल डिडक्ट द पॉप फ्रॉम द वर्किंग टू फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट नेट एसेट में से। ठीक है, अगर पेरेंट सब्सिडरी को सोल्ड करे इन दैट केस वी विल डिडक्ट पॉप फ्रॉम द वर्किंग 5। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सिडरी पेरेंट को सोल्ड कर रही है एंड 20,000 आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, दिस प्राइस इंक्लूड ए मार्कअप ऑफ 12,000, ये मार्कअप इसमें दिया हुआ 12,000, इट मीन्स मैंने कल भी वीडियो में एक्सप्लेन किया था मार्कअप और मार्जिन का डिफरेंस। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्रीवियस वीडियो में जाओ और इसका ये चीज समझ लो, मार्कअप और मार्जिन में डिफरेंस क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मार्कअप दिया और हमारे पास सेलिंग प्राइस है, इट मीन सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? कितना मार्कअप दिया हुआ है हमारा? अच्छा, मार्कअप का वैल्यू दिया हुआ है, परसेंटेज भी नहीं है। ओके लेट इट बी, इसमें से 50% गुड्स यहाँ पे तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मार्कअप ही दिया हुआ है 12,000 फॉर प्रॉफिट। ठीक है, इसी का 50% रिमेनिंग है ना उसमें हमारे पास इन्वेंट्री में,
तो कितना हो जाएगा 12,000 का 50%, इट मीन 6,000। ठीक है, तो ये 6,000 मतलब 6 यहाँ से माइनस कर देंगे 6, और ये हो जाएगा PURP पर। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, और कुछ दिया इन्फॉर्मेशन? अब नहीं दिया हुआ है। ओके, तो ये हमारा टोटल करने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे ठीक है 104। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व मतलब इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। और हम लोग ये 14 जो आया हुआ है इसको पेरेंट एनसीआई में हम लोग इसको अपोर्शन करेंगे। तो एनसीआई का परसेंटेज कितना है यहाँ पे, तो एनसीआई का पोर्शन यहाँ पे कितना है, परसेंटेज लिख देती हूँ। आप ऊपर में भी लिख देना ये चीज वर्किंग वन में कि एनसीआई का परसेंटेज कितना है, ठीक है। 20% है, तो 20% एनसीआई का पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कितना होगा, 20%, ठीक है, इट मीन 2.8। तो हम लोग डायरेक्ट गुडविल ना निकाल के, गुडविल चाहिए भी नहीं अभी, तो हम लोग डायरेक्ट एनसीआई का चलते हैं। एनसीआई के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग फॉर, है ना, वर्किंग फॉर इज फॉर एनसीआई, वेयर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कितना है, क्वेश्चन में गिवन है, आई थिंक आपको याद दिया हुआ है 25,000, ऊपर पढ़ो, ये रहा, ठीक है। तो 3 जीरो कॉमन लिया है तो 25 लिख रही हूँ मैं। एंड एनसीआई परसेंटेज ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, ठीक है। जो हम भी अब हम लोग ने कैलकुलेट किया, ये दोनों को ऐड करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, 27.8 इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर दो, आपको आ जाएगा 27.800, जो आपकी आपका एनसीआई का वैल्यू है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कह रहा, यहाँ पे 3 जीरो कॉमन लिया है हम लोग ने, मैं ये नोट डाउन कर देती हूँ यहाँ पे, ये ठीक है, इसको बोल्ड कर देती हूँ। Okay, 26.21. Volcano Company acquired 75% of the equity share capital of Lava Company on 1st September 20x3. Requirement क्या है first? What is the parent company share of consolidated retained earning that should be reported in the consolidated statement of financial position of Volcano Group at 31st December 20x3? तो आपको रिटेन अर्निंग पूछ रहा है क्वेश्चन में बेसिकली, ओके। तो लाइन बाय लाइन चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 26.21, ठीक है। सो वर्किंग वन फर्स्ट वी विल डू। वर्किंग वन किसके लिए होता है, ग्रुप स्ट्रक्चर के लिए। ग्रुप स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे वोल्केनो एक्वायर कर रहा है 75% शेयर, किसका, लावा का। सो इट मीन्स लावा इज ए सब्सिडरी एंड वोल्केनो इज द पेरेंट कंपनी। और एनसीआई का परसेंटेज ऑन पहले लिखते हैं, एक मिनट, ऑन 1 सितंबर 20x3, और हमारा ईयर एंड क्या है, 31st December 20x3। तो टाइम ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा हमारा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ, ठीक है। उसके बाद एनसीआई का परसेंटेज क्या हो जाएगा, एनसीआई का 25%, क्योंकि 75% पेरेंट एक्वायर कर रहा है, इट मींस रेस्ट 25% इज एक्वायर्ड बाय एनसीआई, ओके। सो रिटेन अर्निंग, हम लोग जब ग्रुप रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करते हैं तो किसका लेते हैं रिटेन अर्निंग, पेरेंट का, ठीक है। और कब का, एक्विजिशन डेट का लेंगे कि हम लोग को क्या निकालना है, जो क्या बोलते हैं एक्विजिशन, जो हम लोग कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे उसमें हम लोग रिटेन अर्निंग क्या डालेंगे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ओके, सो वोल्केनो का रिटेन अर्निंग क्या है,
retained earning. Okay. ओके, सो वोल्केनो का रिटेन अर्निंग हम लोग वर्किंग 5 कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्किंग 5 के लिए वोल्केनो का रिटेन अर्निंग कितना हुआ, पर इसके लिए हम लोग को वर्किंग 2 भी चाहिए। जस्ट वेट, वर्किंग 2 के थ्रू ही जाते हैं, सो बेस्ट रहेगा। सो वर्किंग 2, वर्किंग 2 is for net asset of subsidiary at fair value at acquisition at reporting date and post acquisition reserves. Okay, so here आपका कुछ दिया नहीं है, बस रिटेन अर्निंग पता है हम लोग को, रिटेन अर्निंग लिखेंगे, ठीक है। अब रिपोर्टिंग डेट का रिटेन अर्निंग तो पता है, दैट इज 336, है ना। एंड आपका एक्विजिशन डेट का रिटेन अर्निंग कितना हो जाएगा, एक्विजिशन कब हुआ है, सितंबर में, तो आपको 264 प्लस हम लोग का एक साल का पहले प्रॉफिट निकालो। जस्ट वेट, बता रहे 1 मिनट। इन दोनों का डिफरेंस हमारा इस ईयर का प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। दोनों का डिफरेंस में कितना आएगा, इधर करती हूँ जाओ, 336 माइनस 264, ठीक है। इट मीन 72,000 इस साल का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे 264 में प्लस करेंगे, सितंबर को एक्वायर किया है, इट मीन कितने महीने हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 8 महीना हुआ। 8 महीने का हम लोग प्रॉफिट यहाँ पे ऐड करेंगे। सो 8 डिवाइड बाई 12 इंटू 72, ठीक है, 30 कॉमन है, 72 पता चला कहाँ से है, 72 मैंने इन दोनों का डिफरेंस इस साल का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट का सिर्फ 8 महीना हम लोग ने दिया है, क्योंकि एक्वायर मिड ईयर एक्विजिशन है इसीलिए, ठीक है। तो ये हमारा एक्विजिशन का प्रॉफिट आ जाएगा, और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कितना हो जाएगा हमारा 24,000। इसमें से पेरेंट का हिस्सा कितना होगा, पेरेंट कितना परसेंट एक्वायर किया हुआ है, पेरेंट एक्वायर 75%, ठीक है। इट मीन्स 18 आ जाएगा हमारा पेरेंट के लिए। तो यहाँ पे वोल्केनो का रिटेन अर्निंग कितना है, एक्विजिशन पे निकालेंगे, एक्विजिशन पे नहीं, आई थिंक रिपोर्टिंग पे होगा, एक सेकेंड ना। हाँ नहीं, रिपोर्टिंग पे होगा, तो 650 हम लोग लेंगे। इसके बाद में हम लोग ऐड करेंगे पेरेंट पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, पेरेंट परसेंटेज यहाँ पे 75% डाल देती हूँ, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व पेरेंट का। तो ओके, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 18 का, यहाँ पे 24 का ये 75% मीन्स 18, तो टोटल कितना हो जाएगा ग्रुप रिटेन अर्निंग, जो हम लोग कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में दिखाएंगे, दैट इज 668। ऑप्शन ए इज योर आंसर, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल, जस्ट कॉल आ रहा है मेरा, ओके। सो हमारा ये 22 number question. What profit is attributable to the parent company in consolidated statement of profit or loss for the teen group for the year to 31st December 2016? Teen acquired 90% of
equity share capital of drum company on 1st April 20x3, and the following information related to the financial year to 31st December 20x3 for each company. What is the profit attributable to the parent company? Okay. तो ये आपको तीन कंपनी एक्वायर्ड 90% ड्रम कंपनी का, इट मीन्स आपका तीन कंपनी इज पेरेंट एंड जो आपका ये ड्रम कंपनी है वो सब्सिडरी है, ठीक है। और ये मिड ईयर एक्विजिशन है क्योंकि हम लोग को रिपोर्टिंग डेट है 31 दिसंबर 20x3 और एक्वायर कब किया है 1 अप्रैल 20x3। इट मीन्स कि कितने महीना हुआ टाइम ऑफ एक्विजिशन अगर करेंगे तो वर्किंग वन में ये हो जाएगा आपका 9 मंथ, है ना। एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द प्रॉफिट, हम लोग को बस प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल करना है, पेरेंट का कितना हिस्सा पड़ता है, तो हम लोग प्रॉफिट फॉर द ईयर लेंगे पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26.22, सो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है आपका ड्रम का 60,000, और हम लोग बस 9 मंथ का लेंगे क्योंकि टाइम ऑफ एक्विजिशन हमारा 9 मंथ ही है। 9 डिवाइड बाई 12 45,000। अब इसमें से पेरेंट का कितना है सब्सिडरी का कितना है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। जस्ट वेट, व्हाट इज द प्रॉफिट ग्रुप कंपनी का डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, इसमें से पेरेंट कितना है आपका 90%, तो इसका 90% कितना हो जाएगा 4050, और पेरेंट का खुद का प्रॉफिट कितना है, पेरेंट्स ऑन प्रॉफिट कितना है 70,000, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 110500, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। तो बस हम लोग को पूछ रहा है कि जो हम लोग प्रॉफिट कितना एट्रीब्यूट करेंगे सब्सिडी के बाद, और जो हम लोग कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे वहां डालेंगे, तो वहां पे पेरेंट का प्रॉफिट तो रहेगा खुद का, बस जो सब्सिडी से आया है, नहीं, हाँ, पेरेंट का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, और ये हम लोग पेरेंट का हिस्सा है सब्सिडरी के प्रॉफिट में, दोनों को ऐड करने के बाद ये इतना प्रॉफिट हम लोग एट्रीब्यूट करेंगे पेरेंट को इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द तीन ग्रुप फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2023, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट, सेम क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करो, अगर नहीं बनेगा तो डू लेट मी नो, मैं हेल्प आउट कर दूंगी, ठीक है। 24 क्या कह रहा है, what is the fair value of consideration transfer for the acquisition of sardonic consideration, यहाँ पे आपका टीपीसी बेसिकली पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, ये नया है कुछ क्वेश्चन। तो पहले वर्किंग वन के थ्रू जाते हैं। वर्किंग वन, पैट्रोनिक किसको एक्वायर कर रहा है 18 मिलियन, बस लिखा हुआ है 18 मिलियन, किसका शेयर सार्डोनिक का, और आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर भी दिया हुआ है, आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो वहां से, ठीक है। इसके बाद आपको ये होने के बाद आपको क्या बोला ऑन कब एक्वायर किया है 1 अगस्त 20x7, ईयर इंट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है,
So the acquisition was through the share exchange of two shares in Patronic for every three shares in Chardonnay. The market price of share in Patronic at the 1st August 2007 was 5.75. तो यहाँ पे बेसिकली शेयर कंसिडरेशन हुआ है. शेयर कंसिडरेशन आपका कितना है? परचेज 18 मिलियन शेयर. ठीक है, 80 मिलियन इंटू हो जाएगा, उसने अपना कितना दिया हुआ है, सॉरी आई जस्ट वेट, 24 मिलियन शेयर है सब्सिडरी का, जिसमें से फर्स्ट परसेंटेज में निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पे निकालते हैं कितना परसेंटेज एक्वायर किया हुआ है. 18 उसने एक्वायर किया, टोटल नंबर शेयर 24 है, इंटू 100 कर देते हैं तो 75% एक्वायर किया हुआ है. ठीक है, तो 75% शेयर लिया हुआ है, इंटू टोटल नंबर शेयर 24 है, इंटू उसने फिर 2:3 रेशियो में डिवाइड हुआ है उसने. और मार्केट वैल्यू हम लोग लेंगे पैट्रोनिक का, दैट इज द 5.75. 69 million. दैट इज द बी इज योर आंसर. ठीक है, ये फॉर्मूला देख लो, ध्यान दो. पहले हम लोग ने परसेंटेज फाइंड किया, कितना परसेंटेज एक्वायर किया हुआ है. ठीक है, और या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, परसेंटेज निकाल के 18 मिलियन ले लो. 18 मिलियन में 2:3 रेशियो में शेयर एक्सचेंज हुई है. इट मीन्स फॉर एवरी 3 उसने 2 शेयर अपना दिया, नहीं सॉरी 2 एक्वायर किया, अपना 3 दिया, 2:3. सो वट एवर रेशियो आपको पता चल गया 2:3 है, और मार्केट प्राइस भी पता है 5.75 पेरेंट का. तो वही बस मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला बस ध्यान दो, शेयर कंसिडरेशन का अमाउंट या फिर जो टोटल परचेज कंसिडरेशन हमारा निकल जाएगा. तो 25 में क्या है आपका, व्हाट इज द ग्रॉस ग्रुप प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 20x. एक्चुअल में क्या हुई, लाइट कर गई, मेरे लैपटॉप की बैटरी पूरी ऑलमोस्ट डेड है. सो कितना क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 3 बाकी है. लेट्स ट्राई कहाँ तक चलता है. Okay, what is the gross group profit for the year ended 30 September 20x? X company acquired 80% of equity share capital in the Y company on 31st July 20x6. Extract from the two companies statement of profit or loss for the year in 30 September 20x6 were as follow. Revenue, okay, during the year in 30 September, YCO sold goods to 5,000 each month to X company at a markup of 25% at the year end of and in the year X company and 50% of these goods live in the inventory. तो मैं बेसिकली एक्सप्लेन कर देती हूँ, पर मुझे इस वीडियो को रिट्राइव करने के लिए लैपटॉप का बैटरी चाहिए, ऑलमोस्ट डेड है मेरा लैपटॉप. तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप ट्राई करना, अगर नहीं बने तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. इसने एक्वायर किया 80% और टाइम ऑफ एक्विजिशन आपका मिड ईयर है. देखो जुलाई में एक्वायर हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर को इसका ईयर एंड है. ओके, तो मिड ईयर एक्विजिशन आपका 2 मंथ है, तो जितना भी आप रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स लोगे आप उसको मंथली वाइज अपोर्शन करोगे. ठीक है, उसके बाद ऐड करेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक एक दूसरे ने सोल्ड भी किया है, सो इंट्रा सेल्स जो भी है वो भी डिडक्ट करेंगे दोनों रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स से. और पर्प निकालना, पर्प मैंने निकालना सिखाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में भी, आप उससे एक बार रेफर कर लो. और पर्प को आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाके ऐड करोगे, उसके बाद रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करें, जो भी आपका आंसर आएगा आपका ग्रुप प्रॉफिट हो जाएगा. आप एक बार ट्राई करना, अगर नहीं बनेगा डू लेट मी नो, क्योंकि मेरे लैपटॉप की बैटरी ऑलमोस्ट डेड है, मुझे फिर इसको बैकअप लेने के लिए वीडियो को फिर रिट्राइव करना पड़ेगा. सो मुझे इसलिए मैं जल्दी जल्दी खत्म कर रही हूँ ताकि वीडियो रिट्राइव हो जाए जैसे ही. ओके, 26.6 क्या कह रहा है आपका, WX acquired 75% of equity share capital of YZ several years ago at 31st March 20x6. WX had goods in inventory value at a cost of 60,000 and that had been purchased from YZ at a markup of 20%. What is the effect on the profit attributable to the non-controlling interest and the profit attributable to the parent for the year ended 31st March 20x6?
WX acquired 75% of the equity share capital several years ago. It means WX आपका पेरेंट है एंड YZ आपका सब्सिडी और 75% एक्वायर किया और वो भी several years ago, ठीक है। एंड 31 मार्च 2006 में आगे सब्सिडी ने पेरेंट को सोल्ड, नहीं पेरेंट ने सब्सिडी को सोल्ड किया। WX had goods in inventory value at a 60,000, सॉरी उल्टा बोल रहा है। एट 31 मार्च 2006 WX had goods in inventory value at cost अमाउंट दिया हुआ है 60,000 which has been purchased from the YZ, जो YZ से परचेज हुआ था। इट मीन्स YZ आपका सब्सिडरी से पेरेंट, सब्सिडरी ने पेरेंट को बेचा हुआ है और मार्कअप 20% है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड द प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू द पेरेंट कंपनी फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2006? तो दोनों का बेसिकली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो पर्व का अमाउंट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे पर्व का अमाउंट कितना आएगा आपका, जस्ट वेट एक सेकेंड। हाँ, ओके। तो आपका ये वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है कि आपको जो आपका पर्फ निकलेगा, पर्फ आप जो निकालोगे उसको बस पेरेंट एंड आपका जो एनसीआई में उसमें डिवाइड कर देना है। और डिवाइड करने के बाद ऑब्वियसली ये प्रॉफिट आपका घटेगा तो डिक्रीज डिक्रीज होगा। तो अमाउंट आप कैलकुलेट कर लो, दोनों के केस में डिक्रीज होगा, आइदर सी या डी में से और एक ऑप्शन होगा। बस आपको पहले पर्फ कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे 60,000 है, जस्ट मैं बता ही देती हूँ। 60,000 उसका इन्वेंट्री वैल्यूएशन हुआ है और मार्कअप 20%। इट मीन्स ये आपका 1/20 हो जाएगा परसेंट, 120%, तो 60,000 का 120% इंटू 20 निकालोगे तो 10,000 आएगा। 10,000 में से आपका 75% पेरेंट का है, तो पेरेंट का प्रॉफिट कितना से डिक्रीज होगा, 7500 से। और एनसीआई का परसेंटेज 25% है, तो उस 2500 से, इट मीन्स डी आपका आंसर होगा, ठीक है। And what is the non-controlling interest share of the after? What is non-controlling interest share of the after-tax profit of S for the year ended 31st December 2006? तो बेसिकली आपको ये वर्किंग फोर पूछ रहा है। वर्किंग फोर के लिए एनसी हम लोग क्या करते हैं, P own 80% of the equity share capital of S. The profit after tax of S for the year ended 31st December 2006 was 6 million. P sold S for 4 सॉरी मेरा कॉल आ गया था गाइस। सो वेयर वाज वी 26.27 क्वेश्चन में कि इसमें बेसिकली आपका नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का प्रॉफिट में कितना शेयर है वो पूछ रहा है। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका एक्स एस का है उसमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कितना मतलब लाइक पोर्शन है, ये बस पूछ रहा है। तो जो पी ऑन कर रहा है 80% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस, इट मीन 20% एनसीआई है, ठीक है। 80% अगर पेरेंट है लिया हुआ है, 20% एनसीआई ने लिया हुआ है। और दूसरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर इन 31st दिसंबर 2006 आपको 60 मिलियन दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और क्या बोला है, ड्यूरिंग द 2006 पी सोल्ड गुड्स फॉर टू एस फॉर 4 मिलियन एट ए कॉस्ट प्लस 20%। अब यहाँ पे पेरेंट सब्सिडरी को सोल्ड कर रहा है, ठीक है। सब्सिडी पेरेंट को नहीं, पेरेंट सब्सिडरी को जब सोल्ड करता है हम लोग बस वर्किंग 5 से माइनस करते हैं। अगर सब्सिडरी पेरेंट को सोल्ड करता है उस केस में हम लोग वर्किंग 2 से माइनस करते हैं और प्रॉफिट जब यहाँ पे कैलकुलेट होगा उससे भी डिडक्ट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे तो पेरेंट सब्सिडी को सोल्व कर रहे हैं हम लोग को, इससे मतलब ही नहीं है हम लोग प्रॉफिट और लॉस से। तो एट द ईयर इन इट 50% ऑफ दिस गुड्स वर लिफ्ट इन इन्वेंट्री ऑफ एस। तो यहाँ पे ये इस लाइन का ड्यूरिंग से लेकर लास्ट तक का यहाँ पेरेंट सब्सिडी को सोल्व कर रहा है गुड्स।
तो यहाँ पे इसका कोई यूज ही नहीं है। बस हम लोग क्या कर देंगे, जो 60 मिलियन प्रॉफिट है उसमें एनसीआई का परसेंटेज मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, जो ऑप्शन से आप मैच कर देना। ठीक है, अभी की वीडियो में यहीं तक रोकती हूँ प्लीज, क्योंकि आई एम सो सॉरी, क्योंकि मेरे घर में लाइट नहीं है और क्या बोलते हैं, बैटरी भी लो है लैपटॉप का। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, और भी क्वेश्चन है क्या, और नहीं आई थिंक सो, ओके, बाकी के क्वेश्चन सब चैप्टर सब के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो बाय, सी यू गाइस, टाटा, टेक केयर।